Welcome SVPIs to presentation on chapter number 2, the red raincoat, and this is part 3 of our presentation. So students, in our previous presentation we did questions till here, right? Till A4. Now let's continue with question B1, which is create. Now, do you know which is Manu's favorite season? मनु का जो है फेवरेट सीज़न कौन सा है? मनु जो है उसे बारिश पसंद है, राइट? मनु लव्स रेन. और रेन किस सीज़न में होती है बच्चों? रेन होती है रेनी सीज़न में, जिसे हम बोलते हैं मॉनसून सीज़न एज वेल. ओके, सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मॉनसून? मॉन, MON, मॉन. Soon, SOONS, monsoons, right? So what is monsoons? Monsoons is basically rainy season, and Manu loves rainy season, right? That means Manu loves the monsoons, which is the season of rain. Which मतलब जो कि. Now which is your favorite season? Question mark. यहाँ पे which का मतलब कौन सा. YOUR means आपका. FAVOURITE favorite. Favorite मतलब पता ना आपको. And season, SEASON, season means मौसम. So which is your favorite season? That means आपका favorite season कौन सा है? Which means कौन सा. Why do you love it? Why मतलब क्यों. YOU means आप. Love it मतलब आप इसको क्यों पसंद करते हैं, क्यों प्यार करते हैं. So many of you may have monsoons as your favorite season, right? And why do you love it? Because maybe you like rain, you like the weather, and that time like peacocks dancing, and it's all lush green. हरियाली हो जाती है ना मॉनसून के टाइम पे. सो दैट मे बी द फेवरेट सीजन फॉर फ्यू ऑफ यू, एंड फ्यू ऑफ यू मे लाइक समर. आप में से किसी को समर पसंद होगी. वाई? बिकॉज यू गेट समर वेकेशन, यू कैन गो टू योर रिलेटिव्स प्लेस, उनके यहाँ पे आप घूमने जा सकते हो. सम ऑफ यू मे बी लाइकिंग मैंगोज. आप में से काफ़ी लोगों को मैंगो पसंद होंगे, और मैंगो किस सीज़न में आते हैं? मैंगो कम्स इन summer season, right? Many of you may be liking winter season. आप में से बहुत लोगों को winter season पसंद होगा. Why? Because you love cold and you like to wear warm clothing, right? So it depends on you which is your favorite season. So आप आंसर करिए that which is your favorite season, and you also give a reason. आप उसका reason भी दीजिए that why do you love that season. Right? Now let's move on to the next page. Now question number B2, and what you have to do, LOOK, look. Look मतलब देखना. Look at the pictures, PICTURES, pictures. BELOW, below. Below means नीचे. So look at the pictures below. आपको जो है देखना है किधर? At the pictures below, नीचे जो pictures हैं उनको. Read about the different seasons. Okay? और आपको क्या करना है? Read करना है. ABOUT, about means बारे में. किसके बारे में? Different seasons, DIFFERENT, different. Different means अलग अलग. Season, SEASON, season means मौसम, right? So now you look at this picture. अब इस पिक्चर को देख के आपको कौन सा सीज़न याद आ रहा है? सबसे पहले you look at the sun. This is bright and sunny, right? तो बारिश तो हो नहीं सकती, right? It's bright and sunny, and then you see it's not very green. So this is summer season. SUMMER, summer. So in this season it is very hot. Why? Because the sun is very bright and sunny.
टू बी कंफर्टेबल इन द हीट, COMFORTABLE, कंफर्टेबल. कंफर्टेबल मतलब आरामदायक. ओके, सो यू नीड टू लर्न दिस स्पेलिंग. टू बी कंफर्टेबल इन द हीट, ओके, HEAT, हीट मतलब गर्मी में. वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स. सो टू बी कंफर्टेबल इन द हीट, हीट में कंफर्टेबल होने के लिए हम क्या करते हैं? WEV, वी मीन्स हम. WEAR, वेयर. ओके, WEAR, वेयर मीन्स पहनना. ओके, एंड व्हाट डू वी वेयर? COTTON, कॉटन क्लॉथ्स. कॉटन के जो क्लॉथ्स होते हैं ना, CLOTHES मीन्स क्लॉथ्स, कपड़े. सो टू बी कंफर्टेबल इन द हीट वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स. आप सबको पता है समर सीजन में हम कौन से कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स. एंड वाई? टू बी कंफर्टेबल इन द हीट. एंड यूज HATS, हैट्स एंड अम्ब्रेलास. और हम क्या करते हैं? हैट एंड अम्ब्रेला यूज़ करते हैं. वी हैव आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स टू बीट द हीट. तो जो हीट है उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे पीछा छुड़ाने के लिए, यहाँ पे बीट का मतलब क्या है? पीछा छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं? वी हैव. हम क्या लेते हैं? आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स, राइट? एंड मेनी ऑफ यू may be liking ice creams and cold drink, right? Now you come to the next picture, this one. You see the clouds over here and rain falling down and it is lush green. काफ़ी ज़्यादा green भी है. तो अब आप सब लोगों को पता है which season are we talking about? Monsoons or rainy season. So in this season it rains a lot. A lot मतलब बहुत ज़्यादा. It rains a lot. इस सीज़न में काफ़ी बारिश होती है. वी यूज़ रेन कोट्स, अम्ब्रेलाज एंड लॉन्ग रबर बूट्स कॉल्ड WELLINGTONS. दिस इज़ कॉल्ड वेलिंगटन्स. ओके, सो वेलिंगटन्स क्या होते हैं? लॉन्ग रबर बूट्स होते हैं. रबर के जो है लंबे शूज़ होते हैं और इससे क्या होता है? ये बारिश में गीले नहीं होते हैं. They don't get wet. The sky is often dark with rain clouds. So now it's clear. In this season it rains a lot. इस season में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. A lot मतलब बहुत ज़्यादा. We use, use करना मतलब इस्तेमाल करना. So we use raincoat. हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं? Raincoat, umbrellas and long rubber boots. Okay? Long मतलब आपको पता है, right? So long rubber boots called, और उनको क्या बोलते हैं हम? Wellingtons. The sky is often मतलब अक्सर, dark, अंधेरा, with, dark means अंधेरा, with rain clouds. और rain cloud हमेशा किस कलर के होते हैं? black कलर के, right? Now you look at this picture, you see white layer on the house and trees. तो ये जो ट्रीज और हाउस के ऊपर जो वाइट लेयर है, ये क्या है? ये है स्नो की. ओके, सो दैट मीन्स विच सीजन आर वी टॉकिंग अबाउट? विंटर सीजन, राइट? सो WINTER, विंटर. इन दिस सीजन इट इज़ वेरी कोल्ड. ओके, सो विंटर सीजन में क्या होता है? इट इज़ वेरी कोल्ड. वी वेयर, WEV मतलब हम, राइट? WEV मतलब हम. वी वेयर, WEAR, हम वेयर करते हैं वार्म क्लॉथ्स मतलब गर्म कपड़े, लाइक स्वेटर्स, जैकेट्स, ग्लव्स एंड हैट्स और कैप्स. तो हम क्या वेयर करते हैं? वार्म क्लॉथ्स लाइक स्वेटर, जैकेट, ग्लव्स एंड हैट और कैप. PEOPLE, पीपल लाइक टू ड्रिंक. पीपल जो है वो पसंद करते हैं. लाइक करना मतलब पसंद करना. क्या पसंद करते हैं? टू ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक मतलब पीना. WARM, वार्म ड्रिंक्स. वार्म ड्रिंक मतलब गर्म ड्रिंक, लाइक टी, कॉफ़ी. ओके, एंड ईट सूप. और क्या करते हैं वो? सूप पीते हैं. ओके, SOUP, सूप. ओके,
SOUP soup. So they eat soup to keep warm. और क्यों करते हैं ऐसा? अपने आप को गर्म रखने के लिए. KEEP keep. Keep means रखना. WARM warm. Warm means गर्म. उसके लिए क्या करते हैं वो? They like to drink warm drinks and eat. EAT eat मतलब खाना. Soup to क्या खाते हैं? Soup. To keep warm. अपने आप को warm keep रखने के लिए. Keep मतलब रखने के लिए. In some very cold places. SOME some मतलब कुछ. So कुछ very cold places में, बहुत ज़्यादा cold places में क्या होता है? It also snows. वहाँ पे क्या होता है? Snowfall भी होता है, बर्फ़ भी गिरती है, right? Now let's come to the next picture. You see the tree and all the leaves are falling down. अब आपको पता है पेड़ में से पत्तियाँ कौन से सीज़न में झड़ती हैं? वो होता है पतझड़, और इंग्लिश में पतझड़ को बोलते हैं ऑटम. ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटम. इन दिस सीजन सम ट्रीज शेड लीव्स. शेड SHED. शेड मतलब गिराना. सो इन दिस सीजन व्हाट हैपन्स? सम ट्री शेड लीव्स. शेड मतलब गिराना. LEAVES. लीव्स मतलब पत्तियाँ. Which is why we also call this season the fall. इसी सीजन का एक और नाम है fall. ओके, fall मतलब क्या होता है? गिरना. इस सीजन में क्या गिरती है? पत्तियाँ. सो ऑटम का दूसरा नाम क्या है? We call this season the fall. The season का दूसरा नाम है the fall. The weather is slightly chilly and windy. और इसमें जो वेदर होता है वो क्या होता है? Slightly. SLIGHTLY. Slightly मतलब थोड़ा सा. SLIGHTLY. Slightly means थोड़ा सा. Slightly chilly. CHILLY. Chilly मतलब ठंडा. And windy और हवा वाला होता है. इसमें क्या है? It's slightly chilly and windy. The weather in autumn. Clear? So अब हमें बच्चों क्या पता चला? कितने सीजन्स होते हैं? 4 seasons we are talking about here. Number 1 summer, then number 2 monsoon, number 3 winter, and number 4 autumn. There are 4 seasons. Clear? Now let's move to the next page. And what is this question? Look at the clues below. Look at the. Look मतलब देखो. At the clues मतलब hint. आपको जो hint दिए हुए हैं, below means नीचे. Look at the clues below. उन पे आप जो है clues पे आप देखिए. And name the season. And what you have to do? You have to name the season. आपको season का name बताना है. Number 1 soup, jacket, snowman. अब आपको पता होना चाहिए कि आप सूप कौन से सीज़न में पीते हो, जैकेट कौन से सीज़न में पहनते हो, और स्नोमैन क्या होता है? जो बर्फ़ गिरती है ना, उससे जो आप एक बनाते हो ना टॉय, बर्फ़ का जो आदि बनाते हो, दैट इज़ कॉल्ड स्नोमैन. So now you know which season are we talking about? This is winter, right? So WINTER, winter, right? Now the next one, cold drink, then ice cream and heat. Now which season you have cold drink and ice cream and it is very, the heat is there? Now you know the answer, right? The season is summer. SUMMER, right? Now number 3, rubber boots, rainfall, clouds. Now all of you know clouds, rainfall and rubber boots कौन से सीजन की याद दिलाते हैं हमें? Monsoon. Okay, right? So monsoon. Now number 4, leaves, windy, cool. कौन से सीजन में जो है लीव्स जो है वो गिरती हैं and it is windy and cool? This is autumn, right? So you can write autumn. Then number 5, flowers, birds, bees. कौन से सीज़न में जो है फ्लावर्स जो है वो ब्लॉसम करते हैं, बर्ड्स जो है वो चर्प करती हैं, चहचहाती हैं, एंड बीज जो है वो भी मंडराती रहती हैं फूलों के ऊपर. ये होती है बसंत ऋतु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंग. SPRING. ओके, सो this is clear, right? Now let's come to next question.
नाउ वी नो, KNOW, नो मतलब जानना या पता होना. सो वी नो दैट ऑल थिंग्स हैव नेम्स. सारी चीज़ों के नाम होते हैं. ऑल थिंग्स मतलब सारी चीज़ें. तो सारी चीज़ों के होते हैं नेम्स होते हैं. एंड सच नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. और जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नाउन. व्हाट इज नाउन? नेमिंग वर्ड्स. नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग. किसी जगह का नाम, किसी आदमी का नाम, किसी एनिमल का नाम या किसी चीज़ का नाम. ये सब क्या आते हैं? ये होते हैं नाउन. ओके, सो नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं नाउन. नाउ डिड यू नो थिंग्स कैन हैव स्पेशल नेम्स टू? अब आपको पता है कि जो चीज़ें होती हैं उनके स्पेशल नेम्स भी होते हैं. ओके, लाइक द बॉय इन द स्टोरी इज कॉल्ड मनु. तो यहाँ पे जो स्पेशल नेम क्या है बॉय का? मनु. ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट स्पेशल नेम. आपको ब्लैंक में फिल करना है विद द करेक्ट स्पेशल नेम. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. यू आर अ बॉय और अ गर्ल. यू मतलब आप. सो आप क्या हो? अ बॉय और अ गर्ल. या तो बॉय हो या तो गर्ल हो, राइट? बट यू हैव अनदर स्पेशल नेम. बट, BUT, बट मीन्स लेकिन. यू हैव अनदर स्पेशल नेम. यू मीन्स आपका. अनदर, ANOTHER, अनदर मतलब दूसरा. SPECIAL, स्पेशल नेम है. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस स्टोरी में जो बॉय है उसका स्पेशल नेम क्या है? मनु. ओके, वॉट इज़ योर नेम. सो आपको क्या है? अपना नाम लिखना है. वॉट इज़ योर नेम मतलब आपका क्या नाम है. सो यू राइट, से फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग से रवि, RAVI. ओके, नाउ डू यू हैव अ पेट. क्या आपके पास पेट है? PET, पेट. पेट मतलब पालतू जानवर. PET, पेट. पेट मतलब पालतू जानवर. सो डू यू हैव अ पेट. क्या आपके पास कोई पेट है? डू यू वॉन्ट वन. सो डू यू वॉन्ट, WANT, वॉन्ट मतलब चाहना. सो डू यू वॉन्ट वन. क्या आप एक पेट चाहते हैं? ओके, सो व्हाट इज इट मतलब कौन सा पेट चाहते हैं. सो यू कैन राइट से डॉग. ओके, सो यू कैन राइट डॉग. नाउ व्हाट डज योर फैमिली कॉल इट. आपकी जो फैमिली है वो इसको क्या बोलती है? जो डॉग है उसका भी नाम होगा ना. से फॉर एग्जाम्पल डॉग नेम इज टाइगर. सो TIGER, टाइगर. ओके, यहाँ पे टाइगर मतलब वो वाला टाइगर नहीं. टाइगर इज द नेम ऑफ द डॉग. सो व्हाट डज योर फैमिली कॉल इट. यू कैन से. ओके, so here you can write what is it. So you want to have dog, so there is slight correction, you will put here dog. Now what does your family call it. अब आपकी फैमिली जो उसको क्या बुलाती है. So now you can write the name of the dog. So suppose the name of the dog is tiger, so you will write TIGER. तो टाइगर यहाँ पे क्या है? डॉग का नाम. Now what do you want to call it. और आप उसको क्या बुलाना चाहते हैं. So suppose your name is something different, so you want to call it say शेरा. So you can write शेरा, SHERA. क्लियर. सो यहाँ पे टाइगर या शेरा ये क्या है? ये स्पेशल नाउन है डॉग के लिए. एंड सिमिलरली योर नेम इज ऑल्सो स्पेशल नाउन. क्लियर. सो व्हेन अ नेमिंग वर्ड tells us about the special name of a person, place, animal or thing, it is called a proper noun. सो प्रॉपर नाउन, अभी तुमने नाउन के बारे में पढ़ा. नाउन क्या होती है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. बट व्हेन अ नेमिंग वर्ड टेल्स अस द स्पेशल नेम, बट जो नेमिंग वर्ड है जब हमें बताता है स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन. स्पेशल नेम बताता है किसका? किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी एनिमल का या किसी थिंग का, किसी चीज़ का. इट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ दिस गर्ल से सुनैना. सिंस सुनैना इज प्रॉपर नाउन. And girl is not proper noun. Similarly this boy, say his name is Ravi, so boy is improper noun, but Ravi is proper noun. Clear. Now let's move to next page. अब आपको पता है स्पेशल नेम या प्रॉपर नाउन. ओके, स्पेशल नेम या प्रॉपर नाउन क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ अ बॉय, गर्ल, एनिमल. तो ये क्या है? हमेशा जो स्पेशल नाउन है वो किससे चालू होते हैं? कैपिटल
लेटर से। फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉय क्या है, कॉमन नेम है, कॉमन नेम है ना, बॉय, गर्ल, एनिमल, कैट, डॉग, ये कॉमन नेम है। कोई भी डॉग होगा आप उसको क्या बोलोगे, डॉग ही बोलोगे। बट अगर आपका पेट है और उसका स्पेशल नाम है तो आप उसको क्या बोलोगे, टाइगर, शेरू, शेरा। सो वो क्या है, स्पेशल नेम हो गया। फॉर सिमिलरली से बॉय, मतलब कोई भी लड़का, आप उसको क्या बोलोगे, बॉय। बट अगर आपका वो फ्रेंड है और उसका नाम रवि है तो आप क्या है, रवि जो है स्पेशल नेम हो गया। क्लियर। सो कॉमन नेम जो है बॉय और उसका स्पेशल नेम क्या है, राम। सो राम का जो आर है वो कैपिटल होगा बिकॉज राम इज़ अ स्पेशल नेम। सिमिलरली गर्ल, ओके, तो गर्ल का जी जो है स्मॉल है, बट अगर गर्ल का नाम से रिनी है तो ये स्पेशल नेम हो गया और रिनी का आर कैपिटल होगा। सिमिलरली कैट कॉमन नेम है, ओके, सो सी इज स्मॉल। बट अगर कैट का नाम किटी है तो किटी का के कैपिटल। ओके, सो हमेशा स्पेशल नेम कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, इस बात को आपको भूलना नहीं है। यू डोंट फॉरगेट दिस, ओके, ऑलवेज रिमेंबर। सिमिलरली डॉग, कोई भी डॉग होगा, ये हो गया कॉमन नेम। और अगर डॉग का नेम जो है ब्रूनो है तो ब्रूनो का बी कैपिटल। पेंसिल, ओके, कोई भी पेंसिल होगी, कॉमन है तो कॉमन नेम में आप कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करते। बट अगर वो पेंसिल कौन सी है, स्पेशल नेम है उसका स्पार्कलिंग पेंसिल। ओके, सो स्पार्कलिंग का एस कैपिटल और पेंसिल का भी पी कैपिटल, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, कैन यू ऐड 2 more nouns और स्पेशल नेम्स इन ईच कॉलम। ओके, सो आपको क्या करना है, कैन यू ऐड, क्या आप ऐड कर सकते हैं, क्या 2 more nouns, 2 और नाउन और स्पेशल नेम्स इन ईच कॉलम। ईच कॉलम में आप 2 और स्पेशल नेम आप ऐड कर सकते हैं क्या। सो आप प्लेस का नाम लिख दीजिए, से प्लेस। सो प्लेस में आप लिख सकते हैं से गंगापुर सिटी, अमृतसर, न्यू दिल्ली। ओके, सो प्लेस तो क्या हो गया, कॉमन नाउन, कॉमन नेम, और जो नेम ऑफ द सिटी है वो क्या हो गया, स्पेशल नेम। सिमिलरली थिंग, थिंग तो है कॉमन नेम। अब थिंग में टेबल, स्कूल टेबल या डिनर टेबल, so that is special name. Clear? So now let's move to the next one. UNDERLINE, underline the common names and circle the special name. तो आपको क्या करना है, जो कॉमन नेम है उसको तो अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन मतलब ऐसे, ओके, और जो स्पेशल नेम है उसको करना है आपको सर्कल ऐसे। क्लियर। सो मनु हैज़ अ रेन कोट, सो यू नो मनु क्या है, मनु है स्पेशल नेम, तो मनु को तो आप करेंगे सर्कल और रेन कोट को आप करेंगे अंडरलाइन, क्योंकि रेन कोट जो है वो क्या है, कॉमन नेम। क्लियर। एंड मनु क्या है, स्पेशल नेम। सिमिलरली नंबर 2, देयर वॉज जस्ट 1 white cloud in the sky. Okay, so there was just 1 white cloud in the sky. So पूरे स्काई में क्या है, सिर्फ एक वाइट क्लाउड था। ओके, सो यहाँ पे क्या है, वाइट क्लाउड इज बेसिकली व्हाट इज इट, कॉमन नेम। ओके, कहाँ पे, इन द स्काई, सो स्काई इज ऑल्सो कॉमन। कहाँ पे, प्लेस कौन सा है, स्काई, स्काई इज द प्लेस। एंड वाइट क्लाउड क्या है, थिंग, सो दोनों ही कॉमन नेम है। नाउ द नेक्स्ट वन, नंबर 3, इट रेन ऑन सैटरडे। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वन, बारिश हुई, कब हुई, किस दिन हुई, सैटरडे। ओके, सो आपको स्पेशल नेम को सर्कल करना है तो आप सैटरडे को आप इसमें सर्कल कर सकते हो, और रीज़न ये है कि सैटरडे जो है वो स्पेशल नेम है वीक के किसी डे का। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, मनु सैंग अ रेन सॉन्ग। ओके, सो मनु ने क्या किया, सैंग किया, गाया रेन सॉन्ग। सो यहाँ पे क्या है, स्पेशल नेम है मनु। ओके, एंड देन नंबर 5, ही फॉरगॉट हिज रेन कोट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्पेशल नेम है, कौन सा कॉमन नेम है। तो ही, वह भूल गया, ही मतलब वह, फॉरगॉट मतलब भूल गया, द रेन कोट, हिज रेन कोट। ओके, सो ही फॉरगॉट हिज रेन कोट। तो यहाँ पे ही क्या है,
स्पेशल नेम है या कॉमन नेम है? ही है कॉमन नेम, ये ही कोई भी हो सकता है, राइट? ही के बोलने से पता नहीं चलता है कि ये मनु के बारे में बात हो रही है. सो ही क्या है? कॉमन नेम. एंड रेन कोट इज ऑल्सो कॉमन नेम, राइट? सो दैट्स क्लियर, राइट? So with this, we stop our presentation here. Please go through all the question answers and learn all the difficult words. Thank you.